My dear student, have a pleasant morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. Students, in a previous lecture class, we have completed the chapter, that is the noun, that was the third chapter in your English language portion, and we have completed 3 chapters in English literature. So student, in this chapter we have seen that what is noun and what are the kinds of the noun. We have seen that. So today we will discuss the exercise related to this chapter. So before doing this exercise, I just want to discuss with you the noun and its kind, so so that you can do the exercise very well. So student, what's a noun? I have already taught you. You have to just make a remembrance of that. You have to just memorize those things. You have to just recall those things. So noun is the name of any person, place or thing, and nouns are the naming words. We can say that all the things that are presented in all over the words, all the objects that are presented in all over the words, that are in the category of the noun. So we can say that in the word there is nothing that we counted. There is nothing that we counted as a noun. So student, the thing is that noun are the naming words. So noun are the naming words. जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम नाम देते हैं, that is called noun. Just like a noun is the name of any person, any place or anything. Suppose that we are sitting in a class. So how many things are noun? How many things are noun? You are sitting in a class, student. So can you count 20 or 25 nouns? Yes, obviously you can count them, because you are sitting in a class. The first thing is that students, you are noun. Students, you are noun, and the teachers, they are noun, and the notebooks and the books and the bags that you have, the tiffin, the lunch box, and the geometry box, the pen, pencil, rubber, eraser, sharpener, and the pen, the sketch pen, and the study material that you have inside your bag, into your bag. So that can be counted as a category of the noun. And the teachers, the name of different teachers, name of different subjects, and the chalk, the duster, and the method that we use, these are called as a noun. So student, we have seen that each and everything that are presented in all over the world, these are counted as a noun. So we can say that nouns are omnipresent. Omnipresent means the thing, a person who present everywhere. So that is called omnipresent. And who is omnipresent? God is omnipresent. But here noun is omnipresent, because noun is presented everywhere. Noun is presented everywhere, in the school, is at your home, at your on your road, each and everywhere you can find noun. Suppose that you are at your home. So your family members are in the category of the noun, and your mother, father, sister, cousin, your daughter, son, grandfather, grandmother, these are also as a category of the noun. The name of your son, the name of your daughter, the name of your friend, and all the things that we use for decoration, all the things that we use to decorate our room, and the utensils that we use in the kitchen, and the material that we use in the kitchen to make something new. So these are in the category of the noun. So student, we can say that nouns are the naming words. Okay, so these are the thing, and the person, any person, your friend's name, your mom name, your father's name, your son's name, your sister's name, these are in the category of the noun. ये सारे noun की category में आते हैं. And place, name of the place, your school name, your college name, your primary school name, your city name, your area name. Suppose that you are living in Kanpur. So I live in Kanpur at Nopasta. I live in Kanpur at Dhankurti. I live in Kanpur at this place. So name of the countries, name of the cities, name of village areas. So student, we have seen that each and everything are counted as noun. Fine. And the kinds of the noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. These are 5 types of noun. So proper noun, I just
just want to recall you, I just want to memorize you, so that you can get it very well, so that you can get it very well, and you need not to remote it, you not to cram it, you just try to get it understood, fine. So student, you have seen that this is the book exercise that I am going to teach you, the proper noun. So proper noun is a particular name of person, place or thing. This is the proper noun. And the common noun is a common name of person, place or thing. This is the common noun. And collective noun is a collection of things, collection of person, collection of some other things. And abstract noun is an idea, is an abstract idea that we have into our mind, but we cannot touch it, we cannot see it, but only we can feel it. This is the abstract noun. And the material noun, the substance that we use to make something new, that is the material noun. So student, this is the parts of the noun. And then I just want to discuss with you the exercise of this one related to this chapter. The exercise this one related to this chapter. Exercise that is given on page number 13. Exercise that is given on page number 13. The first A option. The first one is take the correct option. You are Amit Kumar. वाक्य में noun है. You are Amit Kumar वाक्य में noun है. तो the number one exercise number one, and the first sentence is you are Amit Kumar वाक्य में noun है, तो Amit Kumar. So Amit Kumar is your proper noun. Fine. My father lives in Delhi वाक्य में noun है. So Delhi, this one is a proper noun. And the third one, the cow gives us milk वाक्य में noun है. This one, so in this sentence both. In this sentence both, because cow and milk both. Cow is a common noun and milk is your material noun. So this one is your exercise A, that is completed. You have to do this exercise on a book only. You have to do it with pencil, so you can do the correction. Exercise number B. Exercise number B, that is the dash gives us milk. Dash gives us milk. So some options are given over here: Gita, Metal, curd, king, goat. So the goat gives us milk. The sentence will be like this: the goat gives us milk. This one will be filled over here. The second one, Chandragupta Maurya was a dash king. This one is your first. Chandragupta Maurya was a king. It will be filled like this. And the third one, Gita. Gita is a holy book. So you have to fill here Gita. So student, you can see that goat is a common noun, king is a common noun, and Gita, it's the name of the holy book, that is the proper noun, because it's a particular name of person, place, you can note it down. And these are three sentences. Now the sentence number 4. Sentence number 4. Sentence number 4 is, sentence number 4 is, iron is a useful metal. Useful metal. So you have to fill metal. Sentence number 5. Curd is good for health. Curd is good for health. Okay. So student,
student you can fill it? Curd. These two, iron is a material noun. The curd is material noun because these two things are we use to make something new. कुछ नया बनाने के लिए इनको use करते हैं. So this one is exercise is completed. Now the exercise C. Exercise number C. Fine. Exercise number C. My father is going to Delhi. My father is going to Delhi. So which noun is here? Delhi. Delhi is your noun. Delhi is your noun, and this one is a proper noun. Fine. And Ashok was a great king. So Ashok is a noun. Ashok is a noun. That one is your proper noun. And the Himalayas are the highest mountain. In this sentence there are two nouns. In the above sentence two nouns are also there. And the Himalayas, that is your proper noun, and the mountain, that is your proper noun. The Himalayas. That is your proper noun. And you should never tell a lie. You should never tell a lie. So lie, what is lie over here? Lie, झूठ नहीं बोलना चाहिए. Can you see lie? Can you touch lie? No, you can't see lie or not. You can touch lie, but you can only feel. So this is your abstract noun. Fifth one, water is more useful than gold. So lie. And the fifth one, water is more useful than gold. So gold and water and gold, these are your material noun. And we have a large army. Sixth one, army, that is your collective noun, because army, what is army? Army is a collection of soldiers, group of soldiers. How many students are there in your class? So student and class, 7th one. Students and class. Okay. Number 8, student class. So students, what is a student? Students are a common noun, and the class is a group of students, so that is your collective. A herd of cows is grazing in the field. So herd is a group of animals. Herd, that is your collective noun. And cows, COWS, this is your common noun. So student, we have seen that. So separate the noun and their kinds. So in this exercise you have to fill the exercise like this. In this column you have to write the name of the noun, and here you have to write the kinds of the noun. Name of the noun, kinds of the noun, name of the noun, kinds of the noun. So student, you have to do the exercise like this, and I hope so that you have got noun definition and the proper meaning of the noun, what is noun, and the kinds of the noun. And I hope so that you have got the exercise in a detail. So student, I hope so that this is enough for you, and we will continue the next chapter, the noun numbers, in our next class. So till then, thank you and have a nice day to you all. लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 7th क्लास हिंदी को, ठीक है, चतुर्था पाठ पराधीनता नेच्छामि। चौथा पाठ आपकी बुक में ही सीक्वेंस गड़बड़ है, उसमें पंचमा पाठा लिखा हुआ है, उसे काट करके चतुर्था पाठा करिए। पराधीनता नेच्छामि, पराधीनता नहीं चाहता हूँ, नेच्छामि नहीं चाहता, यानी गुलामी नहीं चाहता हूँ या पराधीनता नहीं चाहता, ठीक है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि गुलामी में रहना कोई जीवन नहीं होता है। आजादी में सांस लेना कहीं ज्यादा हमारे लिए
अच्छा होता है बजाय पराधीनता के। ठीक है, तो जो स्वाधीनता और पराधीनता के बीच रहने का अंतर है वो आप इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से मैं इन पंक्तियों का अर्थ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें स्वाधीनता का माहौल क्या होता है और पराधीनता का माहौल क्या होता है, ये अब डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहला संकेत है कस्मिश्चित डैश डैश भविष्यति। ठीक है, इसके पहले आप संदर्भ जरूर लिख लेंगे। संदर्भ एक बार ही लिखना होता है और संदर्भ लिखना मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के पराधीनताम नेच्छामि नामक पाठ से ली गई। ठीक है, फिर संकेत डालिए और अर्थ लिखना शुरू करिए। इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है, ये पंक्तियां आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी। ठीक है, तो देखिए, कस्मिश्चित् समये एकः पालितः सार्वेयः शशकस्य आखेटनाय अरण्ये प्रविशति स्म। कस्मिश्चित् समये, किसी समय, एकः पालितः सार्वेयः, एक पालतू कुत्ता, सार्वेयः मीन्स कुत्ता, शशकस्य आखेटनाय, खरगोश के शिकार के लिए, अरण्ये प्रविशति स्म, जंगल में प्रवेश, कुत्ते ने जंगल में प्रवेश किया। लट लकार की ये धातु है, लेकिन जब लट लकार की धातु में इसमें शब्द जुड़ जाता है तो वो भूतकाल की हो जाती है। ठीक है, लंग लकार बन जाती है। तो देखिए, किसी समय एक पालतू कुत्ते ने खरगोश का शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। ये पास्ट टेंस हो गया, लंग लकार। ठीक है, प्रवेश किया शब्द आएगा। शशकः अवसरं प्राप्य विलीनः अभवत्, खरगोश अवसर पाकर छुप गया, विलीन हो गया यानी छुप गया। अस्मात् परम, इसके बाद, सार्वेयः तदैव एकम, यहाँ तदैव एकम होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है आपके बुक में, वाम एक की मात्रा लगेगी तो संधि हो जाएगी तदैव प्लस एकम। उसके बाद कुत्ते ने तदैव तभी एक भेड़िए को देखा। वृकम मीन्स होता है भेड़िया। ठीक है, एक भेड़िए को देखा। फिर से देखें, इसी समय एक पालतू कुत्ते ने खरगोश का शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। खरगोश अवसर पाकर छुप गया। अस्मात् परम, इसके बाद कुत्ते ने तभी एक भेड़िए को देखा। सार्वेयः, कुत्ता, भो मित्र, हे मित्र, मया सदृशः कस्त्वम्, यह बच्चों विसर्ग संधि है, कस्त्वम् का विच्छेद होगा कहाँ प्लस त्वम्। ठीक है, ये विसर्ग संधि। हे मित्र, मया सदृशः कस्त्वम्, कहाँ मीन्स कौन, कौन मीन्स तुम। हे मित्र, मेरे जैसे तुम कौन हो। वृका मीन्स भेड़िया। अहम वृको अस्मि, मैं भेड़िया हूँ। अस्मि मीन्स हूँ। अहम अरण्ये वसामि, मैं जंगल में रहता हूँ। किंतु कस्त्वम्, किंतु तुम कौन हो। सार्वेयः, कुत्ता, अहम सार्वेयः अस्मि, मैं कुत्ता हूँ। अहम अरण्ये वसामि, मैं जंगल में रहता हूँ। सॉरी, एक मिनट, ये पंक्तियां, सॉरी, अहम अरण्ये ना आएगा बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आएगा ना। अहम अरण्ये न वसामि, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ। किंतु कस्त्वम्, किंतु तुम कौन हो। सार्वेयः, कुत्ता। इस पंक्ति में आएगा ना शब्द। सार्वेयः मैन, कुत्ता कह रहा है अहम सार्वेयः अस्मि, मैं कुत्ता हूँ। अहम अरण्ये न वसामि, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ। अहम तु समीपम स्वभर्तुः गृहे वसामि, मैं तो, तू मीन्स तो, समीप में ही अपने स्वामी के घर में रहता हूँ। वसामि, रहता हूँ। मैं कुत्ता हूँ, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ, मैं तो समीप ही या पास में अपने स्वामी के घर में रहता हूँ। वृका मीन्स भेड़िया। त्वं वने किमर्थं भ्रमसि, तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो। सार्वेयः, कुत्ता, अहम शशकस्य आखेटनाय आगच्छामि, मैं खरगोश के शिकार के लिए आया हूँ।
अनेन इससे मम मनोरंजनम भवति, इससे मेरा मनोरंजन होता है। वृका मीन्स भेड़िया। त्वं कुतः लभसे, तुम कहां से प्राप्त करते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार इन पंक्तियों को देखो। हे मित्र, मेरे जैसे तुम कौन हो। मैं भेड़िया हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, किंतु तुम कौन हो। मैं भेड़िया हूँ, मैं कुत्ता हूँ। साल्वेया मीन्स कुत्ता। मैं कुत्ता हूँ, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ, मैं तो पास में ही अपने स्वामी के घर में रहता हूँ। भेड़िया, तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो। कुत्ता, मैं खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ, इससे मेरा मनोरंजन होता है। वृका मीन्स भेड़िया। तुम कुतः लभसे, तुम कहां से प्राप्त करते हो। ठीक है, इसके आगे का संवाद मैं फिर से अभी आपको बताती हूँ। हाँ बच्चों, आगे देखिए। सारमेया यानी कुत्ता कह रहा है भेड़िए से, मम स्वामी मह्यम दुग्धम मांसम पोलिकाम च यच्छति। मेरे स्वामी मह्यम मीन्स मुझे दूध, मांस और रोटी, पोलिकाम मीन्स रोटी, यच्छति मीन्स देते हैं। मेरे स्वामी मुझे दूध, मांस और रोटी देते हैं। चा मीन्स और। सह मई बहु स्नेहति, सा मीन्स वह, मई मीन्स मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं या वह मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। अहम आहाराय इतस्ततः न गच्छामि। अहम मीन्स मैं, आहाराय भोजन के लिए, इतस्ततः इधर उधर, न गच्छामि नहीं जाता हूँ। मैं भोजन के लिए इधर उधर नहीं जाता हूँ। कुत्ता, मेरे स्वामी मुझे दूध, मांस और रोटी देते हैं, वह मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। मैं भोजन के लिए इधर उधर नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए भेड़िया क्या कह रहा है। वृका मीन्स भेड़िया। किंतु मित्र, किंतु हे मित्र, जब ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है बच्चों, तो हे करके संबोधन में लिखते हैं। किंतु हे मित्र, अहम तु अतीव काठिन्येन भोजनम लेभे। तू मीन्स तो, अहम मीन्स मैं तो अतीव मीन्स बहुत ही, काठिन्येन कठिनाई से, भोजनम लेभे भोजन पाता हूँ या भोजन प्राप्त करता हूँ। मैं तो बहुत ही कठिनाई से भोजन प्राप्त करता हूँ। कदाचिदेव शस्त्रस्य अन्यस्य वा जन्तोः आखेटं करोमि। कदाचिदेव संधि है बच्चों, कदाचित प्लस एव, इसका मतलब हुआ कभी। कभी शस्त्रस्य अन्यस्य वा जन्तोः आखेटं करोमि, कभी खरगोश, वाणी होता है अथवा, अन्य मीन्स दूसरे, जंतु जंतु का, आखेटम करोमि शिकार कर लेता हूँ। कभी खरगोश अथवा दूसरे जंतुओं का शिकार कर लेता हूँ। अन्यथा मृतानाम पशूनाम मांसम भक्ष्यामि, अन्यथा मरे हुए पशुओं का मांस खा लेता हूँ। तदपि अति काठिन्येन लेभे, तदपि मीन्स वह भी, बहुत कठिनता से मिलता है या बहुत कठिनाई से मिलता है। फिर से देखें। कुत्ता, मेरे स्वामी मुझे दूध, मांस और रोटी देते हैं। सा मई बहु स्नेहति, वह मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। मैं भोजन के लिए इधर उधर नहीं जाता हूँ। वृका मीन्स भेड़िया। किंतु मित्र, किंतु हे मित्र, अहम तु अतीव काठिन्य, मैं तो बहुत ही कठिनाई से भोजन प्राप्त करता हूँ। कभी खरगोश अथवा दूसरे जंतु का शिकार करता हूँ, अन्यथा मरे हुए पशुओं का मांस खा लेता हूँ। वह भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। सारमेया, कुत्ता क्या कहता है? त्वं मया सह चल, तुम मेरे साथ चलो। चल जो है रूट लगा आज्ञार्थक है। चल यानी चलो, तुम मेरे साथ चलो। मम स्वामी तवापि पालनम करिष्यति, मेरे स्वामी तवापि, तव धन अपि, दीर्घ संधि है। तवापि में दो शब्द हैं बच्चों, तव धन अपि, यानी तुम्हारा भी। तो मीन्स तुम्हारा, अपि मीन्स भी। मेरे स्वामी तुम्हारा भी पालन करेंगे।
तुभ्यमपि मांसम दुग्धम पोलिकाम च दास्यति। तुभ्यमपि तुम्हें भी, यहाँ भी दो शब्द है, तुभ्यम प्लस अपि, तुम्हें भी मांस, दूध और रोटी देंगे। वृका भेड़िया, मम कार्यम किम भविष्यति, मेरा कार्य क्या होगा। सारमेया कुत्ता, केवलम भर्तु आज्ञा पालनमेव तव कार्यम भविष्यति, केवल स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कार्य होगा। ठीक है, केवल भर्तु स्वामी, स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कार्य होगा। फिर से देखो सारमेया से, तुम मेरे साथ चलो, मेरे स्वामी तुम्हारा भी पालन करेंगे, तुम्हें भी मांस, दूध और रोटी देंगे। भेड़िया, मेरा कार्य क्या होगा या मेरा काम क्या होगा। कुत्ता, केवल स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा काम होगा। तो इस तरह से बच्चों ये संकेत जो था ये पूरा हो गया है। कस्मिश्चित से लेकर के भविष्यति तक। ठीक है, ये पूरा संकेत मैंने पढ़ाया है आपको, तो आप ये संकेत अब पढ़ करके लिखेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 पराधीनता नहीं छामी, पराधीनता नहीं चाहता हूं या गुलामी नहीं चाहता हूं, इन पंक्तियों का मैंने अर्थ पढ़ाया है। तो आप बहुत ही सावधानी से अपना कार्य करें, लेखन कार्य आपका बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Gopal Institution. साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अगला चैप्टर है आपका जंतुओं में परिसंचरण व उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? तो सभी जीवों को अपने शरीर के भीतर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भोजन, सभी जंतुओं को अपने शरीर की आंतरिक क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिज्म को करने के लिए भोजन, जल एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को पहुंचाए जाते हैं या स्थानांतरित किए जाते हैं। इसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन विसरण क्रिया द्वारा पहुंचता है, गति करता है, तथा जल या कोशिका द्रव्य के साथ, जल या कोशिका द्रव्य के साथ रहता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में सभी कोशिकाओं में आवश्यक पदार्थों की पूर्ति के लिए विशेष परिवहन तंत्र होता है। अब परिवहन तंत्र का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, यानी रक्त द्वारा सभी मटेरियल को ले जाया जाता है। अब मानव परिसंचरण तंत्र आप समझ गए। मानव परिसंचरण तंत्र या मानव में परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र एक परिवहन तंत्र है जो हमारे शरीर में रक्त के साथ पदार्थों को ले जाने की क्रिया है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे मुख से, चबाया हुआ भोजन मुख से और हमारी स्टमक में पहुंचता है और स्टमक से फिर छोटी आंत में जाता है और फिर पाचन के बाद उसे अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद भोजन रक्त में मिल जाता है और उस पचे हुए भोजन को रक्त
संपूर्ण शरीर में सबसे पहले तो किडनी यानी वृक्कों में ले जाता है और उसका फिल्टर करके फिल्टरेशन में यानी जो भोजन बचा हुआ है उससे यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करने का काम किडनी करते हैं। किडनी में सबसे पहले ले जाया जाता है और किडनी में रक्त 72 टाइम्स यानी 72 बार सर्कुलेट होता है। इसके बाद उस रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकाल दिया जाता है। पुनः उस रक्त को पुनः उस पदार्थ को यानी पदार्थयुक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है और जहाँ जिस तत्व की जरूरत है, जहाँ जिस मेटेरियल की जरूरत है उसको वहाँ रक्त छोड़ता हुआ संपूर्ण शरीर को ये पहुँचा देता है। तो मानव प्रसंचरण तंत्र में निम्नलिखित कारक कहें या पार्ट कहें, शरीर के पार्ट भाग लेते हैं। नंबर 1 हो गया रक्त। तो द्रवीय ऊतक जो शरीर में पदार्थों को ले जाते हुए तंत्र में बहता है रक्त कहलाता है। यानी जो आपने भोज्य पदार्थों का वो खाया हुआ है उनको अवशोषित करके और वो पूरे शरीर में भेजने का काम रक्त करता है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि विशेष वाहिनियों, धमनियों, शिराओं तथा कोशिकाओं में बहता है। नंबर 2 है रक्त वाहिनियां, नलिकाओं का एक जाल जो रक्त को यहां से वहां ले जाता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। फिर हृदय आता है। हृदय जो मनुष्य के शरीर में डायाफ्राम यानी वक्षस्थल में बाईं ओर स्थित होता है। वैसे होता तो मिड में ही है, बिल्कुल मिड में, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ठीक सामने, लेकिन वो बगल की ओर लटका होता है तो बाईं ओर वो थोड़ा सा झुका होता है। तो हृदय बाईं ओर होता है। तो हृदय रक्त को रक्त वाहिनियों के द्वारा चलायमान रखता है। रक्त का संगठन, रक्त का संगठन रक्त का संगठन। रक्त वाहिनियों में आगे बहने वाला एक लाल रंग का द्रव है जिसमें निम्नलिखित रूप से या निम्न 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त में जो प्लाज्मा है, रक्त की लाल कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और नंबर 3 श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इस समय प्लाज्मा की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल होता है या रक्त के कुल आयतन का लगभग 50 से 60% होता है। रक्त के कुल भाग का लगभग ये 50 से 60% तक होता है। प्लाज्मा जल के लगभग 90% से तथा शेष 10% प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स तथा जल युक्त पदार्थों से बना होता है। यानी प्लाज्मा कैसा बना होता है? प्लाज्मा जल के लगभग 90% से तथा शेष 10% जो 10% भाग बचा उसको प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स तथा जल युक्त पदार्थों से बना होता है। अब नंबर 2 में है तो प्लाज्मा आप समझ गए होंगे क्या है। ये बात कैसे कहूँगा प्लाज्मा? तो प्लाज्मा रक्त के कुल आयतन का 50 से
60% प्लाज्मा होता है, यानी कुल रक्त का 50% से 60% भाग ये पीले रंग का होता है, यानी प्लाज्मा रक्त के कुल आयतन का 50 से 60% होता है। प्लाज्मा जल के लगभग 90%, प्लाज्मा में जल का 90% भाग होता है एवं प्रोटीन 10% प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स तथा जल युक्त पदार्थों से बना होता है। प्लाज्मा आप समझ रहे होंगे क्या है, ये हल्के पीले रंग का होता है और कुल रक्त में 50 से 60% भाग इसका होता है। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% यानी 10% प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स तथा जल युक्त अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब आता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं तथा छोटी चपटी गोल व बीच में से दबी हुई होती हैं। ये रक्त में बहुतायत में पाई जाती हैं। ये मुख्यतया एक आयरन युक्त प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी रक्त में आयरन की मात्रा ठीक ठाक होने का मतलब है कि लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति ठीक है। इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इनमें एंजाइम व रसायन भी पाए जाते हैं जो इनके कार्य को और अधिक प्रभाव युक्त बनाते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 व CO2 का परिवहन करना इसका कार्य है। अब फिर से एक बार देख लें जरा। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन यानी आयरन युक्त प्रोटीन से बनी होती हैं। इनका काम जिस हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन को ही हीमोग्लोबिन कहते हैं और जिनके कारण ये इनका रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी ये संपूर्ण शरीर में संपूर्ण कोशिकाओं को, क्योंकि शरीर में बहुत असंख्य कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिका को कार्बन ऑक्सीजन देना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं तथा इसे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाती हैं, जहां यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे परिवर्तित हो जाती है? जब लाल रक्त कणिकाएं रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं को देती है, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक पार्ट, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में ऑक्सीजन, चूंकि वहां ग्लूकोज कलेक्ट रहता है और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे इस क्रिया से हमको कार्य करने की ऊर्जा, एनर्जी भी मिलती है तथा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिर से रक्त ले करके और वापस फेफड़ों तक लाता है, जिसके माध्यम से यानी फेफड़ों के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। अब अगला नंबर है
श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में एक मुख्य कार्य करती हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करने के करती हैं तथा शरीर के प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है शरीर को रोगों या जीवाणुओं से बचाना। तो श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में एक मुख्य कार्य करती हैं कि शरीर को जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा शरीर के प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। इन्हें अवर्णिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें आयरन ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इनमें आयरन नहीं होता है। आयरन की कमी होती है। इनका आकार अनिश्चित होता है। ये रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो इनकी भी संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज शरीर जीवाणुओं से ग्रसित हो जाता है। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स भी कहा जाता है। कोशिकाओं के रंगहीन अनियमित आकार वाले होते हैं। ये कटे हुए स्थान में रक्त को जमने का कार्य भी करते हैं। जैसे कहीं पर चोट लग जाती है और रक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ प्लेटलेट्स के कारण जैसे ही रक्त बाहर आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो वो थक्का बना देता है और थक्का बनने के बाद वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो इनका काम ठीक प्लेटलेट्स का कार्य रक्त को थक्का बनाने का कार्य है। तो बच्चों, आपने रक्त के बारे में भी या परिसंचरण तंत्र के बारे में आपने रक्त के संगठन तक का अध्ययन कर लिया। तो आज इस क्लास में यहीं तक, आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।